Good morning, student. Today we are going to discuss about last topic of electrochemistry, cohesion. Cohesion, the process of slow eating up. The process of slow eating up of a metal by the gas and water vapor present in air due to the formation of certain chemical compound. Again repeats, cohesion, the process of slow eating up of a metal by the gas and water vapor in air due to the formation of certain chemical compound. If the iron is metal involved, then the chemical process is known as rusting. If the iron is a metal involved, then the chemical process is known as rusting. Rusting is a hydrated ferric oxide. Rusting is a hydrated ferric oxide. Fe2O3.XH2O. Rusting is a hydrated ferric oxide like Fe2O3.XH2O is a brown in color. Rusting is a hydrated ferric oxide like Fe2O3.XH2O and is brown in color. It may be noted that corrosion या rusting. Rusting is a hydrated ferric oxide like Fe2O3.XH2O. It is brown in color. It may be noted that corrosion या rusting. Rusting is the slow eating process. Metal by the gas या water vapor present in the air due to the formation of a certain chemical compound. If iron metal involved, then the chemical process is known as rusting. Rusting is a hydrated ferric oxide like Fe2O3.XH2O. It is brown in color. It may be noted that corrosion या rusting. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में. मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन या मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग क्या है. मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग या मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी. ये हमारा आधारित है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पर. इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल the surface of iron. Mechanism of corrosion या rusting of iron, it is based on the electrochemical theory. It involves the formation of small electrochemical cell, the surface of iron. The surface of iron at anode always oxidation takes place. Fe iron solid goes to Fe2 plus. This is oxidation process. At cathode, carbonic acid is formed by the combination of carbon dioxide and water present. At anode, carbonic acid formed by the carbon dioxide and water molecule.
वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3, then carbonic acid goes to 2H plus and carbonate ion, and then water molecule convert to hydrogen ion and hydroxide ion. Hydrogen ion goes to hydrogen atom. This is reduction process. This is reduction. At cathode, reduction always takes place. Hydrogen, 4 hydrogen plus oxygen is equal to water molecule. Then iron, solid iron react with oxygen plus hydrogen ion. हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया? फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल से, मॉइस्चर से, इज इक्वल टू Fe2 प्लस एंड H2O. दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कोरिजन या रस्टिंग. अगेन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरिजन या फैक्टर ऑफ कोरिजन. फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ कोरिजन. फर्स्ट हमारा है पोजीशन ऑफ मेटल in इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. दूसरा हमारा सेकेंड फैक्टर प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी. एंड थर्ड फैक्टर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. And fourth factor presence of air and moisture. And fifth factor reactivity of metal. So these are factor affecting of cohesion या factor with promote cohesion. First factor is position of metal in electrochemical series. Position of metal in electrochemical series in general depend upon the position of electrochemical series. Lower the position of metal in the electrochemical series, user is its reduction easier oxidize. Second, presence of impurity. थर्ड है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. एंड फोर्थ फैक्टर प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. एंड फिफ्थ है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. इन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल या मोर इलेक्ट्रोपाइटिव मेटल अंडरगोज कोरिजन मोर इजली. रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के अंतर्गत अगर मोर इलेक्ट्रोपाइटिव मेटल है तो वो आसानी से कोरिजन डेवलप करेगा. मोर इलेक्ट्रोपाइटिव मेटल अंडरगो कोरिजन मोर इजली. एयर और मॉइस्चर के थ्रू कोरिजन डेवलप होगा. इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में हमारा कोरिजन डेवलप होगा. जैसे इलेक्ट्रोलाइट हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है. इम्प्योरिटी रहेगी तो कोरिजन डेवलप होगा.
एंड पोजीशन ऑफ मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर जो मेटल ऊपर है तो नीचे वाले मेटल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हमारा ऊपर है नीचे वाले मेटल में हमारा कोलिजन ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये हमारा 5 फैक्टर हमारा कोलिजन का था। अगला इसमें है प्रिवेंटेशन ऑफ कोलिजन। कोलिजन को हम कैसे रोकें, प्रिवेंटेशन ऑफ कोलिजन। प्रिवेंटेशन ऑफ कोलिजन में हमारा पहला हमारा है ऑयल एंड पेंटिंग। प्रिवेंटेशन ऑफ कोलिजन, पहला है हमारा ऑयल एंड पेंटिंग। दीज आर इजियर मेथड। कोई भी मेटल है उसको हमको कोलिजन से बचाना है तो उसकी ऑयलिंग और पेंटिंग कर देते हैं। दूसरा हमारा है गैल्वेनाइजेशन, या उसी को हम लोग बोलेंगे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, sacrificial protection. In this method, the surface of iron is coating with more reactive metal. Sacrificial method में अगर हम लिखना चाहेंगे तो in this method, the surface of in this method, the surface of iron is coating with more reactive metal like Zn। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव मेटल का अगर हम कोटिंग कर देते हैं, जैसे हमारा आयरन है, ये मान लीजिए ये आयरन की रॉड है, इस पर अगर हम जिंक का अगर हम कोटिंग कर देंगे या इससे आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल का अगर हम कोटिंग कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन मेथड कहते हैं। तो इन दिस प्रोसेस द सरफेस ऑफ आयरन इज कोटिंग विथ more reactive metal like zinc, This process is known as galvanization. तो these are prevention of corrosion। पहला वाला था ऑयल एंड पेंटिंग, दूसरा था सैक्रिफिशियल मेथड, एंड थर्ड हमारा है प्रिवेंटेशन यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन। थर्ड हमारा यूजिंग एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन। एंटी रस्टिंग, जो रस्ट को क्या करे, कोलिजन को क्या करे, रोके। यूजिंग रस्टिंग सॉल्यूशन लाइक एल्कलाइन फास्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट। यूजिंग रस्टिंग सॉल्यूशन like alkaline phosphate and alkaline chromate
एल्कलाइन फास्फेट एंड एल्कलाइन क्रोमेट इज ए एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन। अगर आयरन की राड है उसको हम एंटी रस्टिंग सॉल्यूशन से क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे, तो उससे भी हमारा प्रिवेंट हो जाएगा, कोलिजन को क्या करेगा, रोक सकता है। तो दीज आर लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक था कोलिजन। कोलिजन खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, केमिकल काइनेटिक्स। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एराइज होगा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नट्स इक्वेशन, कोरास लॉ, मूलर कंडक्टिविटी, अनस्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और बैटरी में हमारा सेकेंडरी सेल लाइक लेड स्टोरेज बैटरी और निकल कैडमियम, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रहा है उसको हमको फोकस करना है। और इस कोलिजन में हमको मैकेनिज्म फोकस करना है कि इसकी मैकेनिज्म कैसे डेवलप हो रही है, प्रिवेंटेशन और फैक्टर, ये हम लोग 10th में भी डिस्कस कर चुके थे। थैंक यू।